of charges, right? Yes, sir. Yes, sir. Today we'll get into a new topic, that is equipotential surface, right? So see, there are concepts of equipotential points also. Like if you have got 2 points where the potential is same, then their points will be called as equipotential points, right? Yes. Yes. But if you have got a plane, if you have got a surface, if you have got an area with each and every point having same potential, then that plane, that area can be called as equipotential surface, right? Yes. Yes. Yes, sir. So I can say an equipotential surface, an equipotential surface is the surface where each and every point will have same potential, same potential. Is it okay, bacha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me elaborate this. If I consider a point charge, right? For point charge, what is the formula for electric potential at some distance r, bacha? 1/4 pi epsilon 0 1 q by upon r. 4 epsilon Right. naught q by r. For point charge q, the electric potential at a point which is at a distance r is given by electric potential at a point is given by. So obviously at a point it will be at some distance r, so we can write v is equal to, as you told, 1/4 pi epsilon 0 q upon r, right, bacha? Yes, sir. Yes. Yes, sir. See, if I'm considering point charge, obviously charge will be constant here. What is going to vary? R is going to vary, R. right? R. Yes. Yes. If I take V, R is constant here. So R is same everywhere. Then obvious, the V will be same everywhere. Constant. Yes. 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 So if R is constant, you will be having many points. And Potential is each constant. and every point will be the potential will same, right? Yes. Yes. So definitely that point, I mean the points, the collection of points where R is constant, V will be constant. That collection of point will give you a plane, and that plane will be called as equipotential surface, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So definitely I can write, hence the equipotential surfaces of single point, equipotential surfaces of a single point charge. Don't you think, bacha, you will be having, if R is constant, so you can have many, R1 is constant, R2 is constant, R3 is constant, you can have many, right? Yes. Yes, sir. It means you're going to have many equipotential surfaces. So here you're going to have R concentric. Don't Sir, you think that, sentence repeat करो ना. कौन सा बच्चा ये वाला? हाँ. देखो बच्चा, R का वैल्यू R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, बराबर है ना? Yes. फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखो, इधर बनाता हूँ, जो हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है, तो मान लो पहला मैंने डिस्टेंस R1 लिया, तो R1 रेफरेंस पे एक स्फीयर मिलेगा ना तुमको? Yes, sir. Yes. Yes. ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है. नेक्स्ट R2 का रेफरेंस में मैंने और एक बनाया, बड़ा स्क्वायर. तो हाँ, आपको yes, sir. दूसरा मिलेगा बच्चे. इनफैक्ट
R1 और R2 के बीच में इतना डिस्टेंस रखना भी जरूरी नहीं है. You can have small distance. You can have same. So you can have Yes. infinite Yes. equipotential surface, right? Yes, sir. समझा. Yes, sir. Yes, concentric spherical, as I told, it is sphere surfaces. Right? Yes. Yes. Are concentric spherical surfaces. ओके, ये एक चार्ज का हो गया, राइट. सिंगल. अभी सपोज चार्ज ऐसा नहीं है, राइट. सपोज चार्ज ऐसा है, सपोज ऐसा है, वायर है, वायर लाइक दिस. तो इधर क्या होगा बच्चा? फॉर एग्जाम्पल इसका सिलेंडर एक आएगा. हाँ बच्चा, वेरी गुड. एक R1 डिस्टेंस पे लिया, तो ऊपर बनाता हूं, दैट इज बेटर. R1 डिस्टेंस पे ऑब्वियसली आपको एक सिलेंडर मिलेगा, ऐसा कुछ. बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइक दिस. आई होप विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप. Yes, sir. Yes, sir. बच्चा आपको याद रखना है, इसका ऊपर जो है ना, ऊपर नहीं रहेगा, खाली Yes. ये कर्व सरफेस पे रहेगा, Along the length. राइट. ऊपर अलग होगा, ऊपर अलग है ना, राइट. Yes, Yes. sir. Yes, sir. आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट. दोनों क्लियर है बच्चा, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. एक बनाऊंगा तो थोड़ा डायग्राम गड़बड़ दिखेगा. बट अभी आप देखेंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ऐसा बाहर आता है, राइट. तो इसका मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको परपेंडिकुलर दिख रहा है मेरे को. Yes. तो इधर Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया, तो आई कैन ऑब्जर्व जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. Perpendicular. Yes. यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. अभी मतलब ये प्रॉपर्टी है, उसको वो भी प्रूव करना है हम लोग को, राइट. सो equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surfaces where charge is placed at the center, where charge is at the center. Is it okay बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख लेते हैं for linear charge. तो क्या होगा लीनियर चार्ज के लिए बच्चा, बोलो. Cylindrical equipotential. Cylindrical equipotential surface. Right. So the equipotential surfaces, equipotential surfaces will be cylindrical. Coaxial cylindrical बोलूं चलेगा? Yes, sir. क्या होता है इसको, क्या होता है? Axis same है. Axis same है सबका, right? Very good. Yes. Axis. Is it okay बच्चा? Everybody followed? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये अभी सपोज मेंशन करूं तो इधर मेंशन करता हूं. बच्चे ये जो डॉटेड लाइन है, तो आपको पता है देयर इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट. Yes. Yes. सरफेस. एंड ये जो ई का है, ऑब्वियसली दे लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, राइट. Yes. Yes. लाइंस ऑफ फोर्स. बच्चे इधर तक सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बच्चा? No, sir. No, sir. ओके बच्चे, कंप्लीट करो इसको.
Finished? No, sir. No, sir. Done, sir. Okay. Everybody finished, No, bacha? sir. Done, No. sir. No. Okay. Done. Done, sir. Okay, fine. So रब कर रहा हूं मैं. Yes, sir. Fine. ठीक है. अभी ध्यान दो. Point number 1. या नोट नंबर 1 भी ले सकते हो. इट्स अप टू यू. बच्चा सपोज दो पॉइंट का बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है तो सबको पता है वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी. वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट potential difference between 2 points A and B is defined as work done to move a unit charge from B to A, right? Yes. बच्चा देखो potential difference between points A and B is defined as work done to move a unit positive charge from B to A. ये तो समझ में आया. अभी स्टेटमेंट में लिख दिया, राइट? तो इसका Yes. मतलब Yes, इसका sir. मतलब VB फाइनल VA फाइनल ए पे पहुंचा है तो VA minus VB will be equal to work done to move the charge from B to A. So BA upon Q0 if you are moving charge Q0. बराबर है? Yes. Yes, sir. बच्चा पक्का समझ में आया? इधर तक समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन नहीं है? सर एक बार वापस समझाए. No. बच्चा ये लास्ट टाइम का डेरिवेशन है पोटेंशियल वाला, याद करो. आप तो एक दो पेज टर्न करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिखेगा
the statement will read as work done to एक दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेके जाएंगे, बराबर ना बच्चा? Yes, sir. आई डोंट नो किधर लिखा है, बट लिखा है किधर तो हम लोग ने, राइट? Yes, sir. मतलब फॉर एग्जांपल बच्चे दो पॉइंट है ए और बी, तो हम लोग को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लेके जाएंगे, तो जितना भी वर्क डन लगता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उधर से, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या बी और ए का रेफरेंस पे चाहिए, देन ए टू बी लेके जाना पड़ेगा, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियस है इधर वर्क डन को हम लोग Q0 इंटू VA माइनस VB लिखेंगे, बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यूनिट चार्ज लेके गए तो Q0 लिखेंगे, चार्ज Q लिखा तो इधर Q लिखेंगे, तो इधर Q लिखा तो इधर भी Q आ जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मान लो ये दोनों पॉइंट A और B इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. If Yes, sir. Yes. points A and B lie on equipotential surface, Zero हो lie जाएगा. on, हाँ तो बताओ क्या होगा? दोनों Zero का होगा, पोटेंशियल zero. सेम होगा, Same होगा. Yes. राइट? Zero आएगा. Yes. Work done zero. एग्जैक्टली, Zero. सरफेस, राइट? देन आपको पता है पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल एट बी सेम होगा, इसका मतलब VA माइनस VB का वैल्यू जीरो होगा, तो स्टोरी Zero. ओवर। ये जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा बच्चा? Zero. Zero. तो आप BA लिखो या AB लिखो, irrespective of that will be zero, right? Yes. Yes. तो नोट नंबर 1 क्या बोलता है बच्चा? द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम one point to another point in equipotential surface will be zero, right? Yes. Yes, sir. So I can write work done to move a unit charge या test charge, whatever, move a test charge on equipotential surface is always zero. बच्चे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Always zero. No confusion, right? No, sir. Okay बच्चे, note number 2. So note number 2 में हम लोग क्या करेंगे बच्चा? विजुअलाइज करो, ये चार्ज Q है, टेस्ट पॉइंट चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका, Surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड आपको चाहिए तो डिस्टेंस R ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, मतलब इधर से इधर जो डिस्टेंस है वो R है, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे? ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक छोटा सा प्लेन कंसिडर करेंगे, छोटा सा, राइट? मान लो मैंने इधर एक प्लेन कंसिडर किया, इज इट ओके? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है ना? Yes, कुछ sir, कंफ्यूजन नहीं है, Yes, राइट? sir. Yes, Yes. sir. Yes. ऑफ कोर्स एक डॉटेड आप चाहिए तो विजुअलाइज कर सकते हो दूसरा सिंबल, राइट? अभी इसका Yes, हर एक sir. पॉइंट में पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चा? सेम रहेगा, यू Same. एग्री विद Same मी? रहेगा. Same. ठीक है, तो अभी इधर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ए पॉइंट एक रेफरेंस लिया, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर आता है, लाइक दिस, राइट बच्चा? Yes. 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 मतलब सपोज ये दिखता नहीं है तो ऐसा बाहर आता है, अभी थोड़ा विजुअलाइजेशन होता है, राइट? Yes, sir. ऐसा कैसा बाहर आ रहा है, राइट? Yes. तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे? एग्जैक्टली इधर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, राइट? यू कैन प्लेस इट
चार्ज Q नॉट, नो प्रॉब्लम, इधर, एंड इसको मूव करेंगे, आई मीन इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऊपर मूव करेंगे। विजुअलाइजेशन हो रहा है? Yes, yes. Yes, sir. ओके फाइन। सो मैंने इधर से इधर मूव किया, इधर से इधर, राइट। सो अल्टीमेटली आई मस्ट हैव कवर्ड सम डिस्टेंस, लेट इट बी dx बार, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, राइट। Sir. और एक Yes. छोटा सा एरिया है तो आप ds ले सकते हो, dA ले सकते हो, छोटा सा एरिया है, राइट। Yes. Yes, sir. yes. हाँ, अभी बताओ बच्चा, अभी जनरल फॉर्मूला का बात करेंगे। जब मैं Q0 का इधर से इधर लेके गया तो वर्क डन तो होगा ना। तो वर्क डन Yes. को जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, छोटा डिस्टेंस छोटा वर्क डन, सो वर्क डन विल बी गिवन बाय, क्या लिखेंगे बताओ? Force into this. Force into displacement. Minus F Force into dx. dx. F into dx. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इज इट ओके? Yes. Yes. Yes, yes. अच्छा, आपको समझने वाला बात है, एक तो इसको आप, वो 90 डिग्री लग रहा है इसलिए जीरो हो जाएगा वो एकदम। हाँ वही बताना चाहता हूं मैं इक्वेशन से। F इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0 है, इसका मतलब F इज इक्वल टू ई Q0 है, बट Q0 का वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट चार्ज है, तो Yes. आप F का बदले में E भी लिख सकते हो। इज इट ओके? Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. नहीं तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हैं बच्चे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स होता है। फिर से ये Yes. Yes, sir. हाँ, तो अब इधर ही काम खत्म कर सकते हैं हम लोग, Cos F 90 0. dx cos थीटा, राइट बच्चा। Yes, Yes. sir. Yes, sir. इधर फोर्स का कुछ वैल्यू है, डेफिनेटली है, dx का कुछ वैल्यू है, डेफिनेटली है, बट आपको पता है सिंस इट इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन तो जीरो है, Yes. Yes, sir. बराबर है बच्चा, Yes, sir. Yes. Sir. राइट। सो हियर वर्क डन इज जीरो, dw जीरो है, because we are moving on equipotential surface, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So definitely मैं लिख सकता हूँ कि ये जीरो है, तो f dx cos theta भी जीरो है, f का वैल्यू है, dx का वैल्यू है, तो then obviously cos theta का पास कुछ ऑप्शन नहीं है, dash to be जीरो, right? Zero. Yes. 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 अभी cos theta जीरो है तो cos का तो वैल्यू 90 होगा, 90 degree. इसका मतलब f और dx का बीच में एंगल क्या है बच्चा? 90 डिग्री। degree. 90 degree. 90 degree. और dx और f 90 डिग्री का मतलब आपका dx तो प्लेन में है ना, राइट? Yes. Yes. इसका मतलब कंक्लूजन ये है, E बार इज परपेंडिकुलर टू dx बार, राइट? Yes. 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 और I can also write E bar is perpendicular to ds, I mean area. Area, yes. बच्चा ds Yes, बार sir. नहीं लिखा है मैंने, बस इधर बार लिखा तो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर मतलब वही डायरेक्शन आएगा वापस, राइट? Yes. जीरो डिग्री आ गया। Yes, sir. तो Yes. कंक्लूजन ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट? Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal or perpendicular to equipotential surface. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Surface. Okay, बच्चा लिख लो, कंप्लीट करो इसको।
Done, sir. Okay, but everybody finished? Yes, sir. Okay, should I rub the board? Yes, sir. Fine. So दो हो गया प्रॉपर्टी एंड बच्चा अभी आपको मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या होगा? सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट किधर आएगा बच्चा? परपेंडिकुलर आएगा, एक Perpendicular. पैरेलल आएगा, Yes. राइट? Yes. Yes. बच्चा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो ऑब्वियसली इधर कंपोनेंट आएगा एक, इधर एक कंपोनेंट आएगा, तो इधर कंपोनेंट गया तो मतलब Yes, वर्क sir. डन होगा ना। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. बट हमको पता है ना वर्क डन होता ही नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है। आई होप यू गेटिंग, Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट? कभी कभी क्वेश्चन आएगा व्हाई इट हैज टू बी, यू नो, व्हाई इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव? इफ इट इज नॉट, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस? देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ कंपोनेंट पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, so ultimately some work has to be done to move the charge। बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। नाउ थर्ड वन, बच्चा थर्ड वन ये है बच्चा, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है ना बच्चा। एक का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, दूसरे का 3 वोल्ट है, वो इंटरसेक्ट कैसा हो सकता है? क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ तो एक पॉइंट में we'll have two value of Two potential, value right? potential. Yes. Yes. So you can take it as note number 3. That is, equipotential surface will never intersect each other. Two equipotential, two or more, कैसा भी लिखो, two equipotential surfaces will never intersect each other. And इधर भी प्रॉब्लम ही है, intersect हुआ, so you'll have two values of electric potential, right?
बच्चे बराबर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब सपोज हमारे पास ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मान लो यूनिफॉर्म है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन सकता है, राइट बच्चा? ऐसा होगा, Yes, sir. Yes. Yes. क्योंकि इंटरसेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। इज इट ओके? Yes, Yes. sir. Yes. Yes. So they may be very close, but they will never intersect each other, right? Equipotential surfaces. Is it okay? Any confusion? तो डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या बोल रहे हो बच्चा? डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस। डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सेंटर में आता था, जीरो वाला। बच्चा बच्चा सुन रहे हो आप? यस सर। चलो तुम्हारा डाइपोल का भी कंफ्यूजन क्लियर। अभी एग्जांपल लेते हैं कुछ, डाइपोल की बात करेंगे, राइट? सो डाइपोल में तो क्या होता है बच्चा? अनलाइक चार्जेस होता है, राइट? Yes. Yes. मान लो ये इसका एक्सेस है, सो इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है एंड हियर यू गॉट नेगेटिव, राइट? अभी इधर क्या होगा बच्चा? दे अट्रैक्ट, राइट? तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा बनता है, ऐसा। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. और आपको पता है वो स्ट्रेट क्यों नहीं जाता है? आपको पता है क्योंकि वो कंडक्टर जो चार्ज का सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगा बच्चा? 90 डिग्री। इसके लिए 90 वो degree. ऐसा होके ऐसा जाता है ताकि एंगल 90 होना चाहिए। बराबर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट मूव्स। सर वॉइस ब्रेक होता है इसमें। ब्रेक हो रहा है क्या बच्चा? नहीं सर, मेरा नेटवर्क वीक है, तो एक बार फिर से रिपीट। अच्छा अच्छा, वैसा बोल रहे हो? हाँ, तो बच्चे ये डाइपोल था, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर से बाहर आता है एंड इधर ऐसा कर्व हो क्या आता है? क्योंकि इधर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना। यस सर, सर। बराबर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो ये लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? इधर तक समझ में Yes. आया बच्चा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा देखो। ऑब्वियसली मिडिल पे बच्चा, इक्वेटर पे हम लोग को पता है, इफ दिस इज इक्वेटर, इधर पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? जीरो होता है। याद है आपको? V इज इक्वल टू Yes. जीरो। तो इधर एक Yes. प्लेन है, इधर पोटेंशियल जीरो है, तो ऑब्वियसली ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। यस सर, समझा सर। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चा इधर पोटेंशियल क्या होगा बच्चा? देखो इधर लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज है, इधर लाइंस ऑफ फोर्स कैसा है बच्चा? दूर दूर है। दूर दूर। तो इधर पोटेंशियल आपको नजदीक मिलेगा, तो इधर दूर आएगा, मतलब ऐसा कुछ सर्कल बनेगा लाइक। समझ में आ रहा है सर एक बार फिर से रिपीट करें। बच्चा? इधर लाइंस ऑफ फोर्स कैसा है? नजदीक है ना, नजदीक। तो इधर दूर है, राइट? यस सर। Yes, बच्चा sir. इधर पोटेंशियल आपको 1 वोल्ट है, तो इधर 1 वोल्ट मिलने के लिए आपको क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा बच्चा? थोड़ा ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। Yes. Yes, sir. समझा। Yes. इज इट वेरी क्लियर बच्चा? मतलब इधर बहुत सारा सर्कल्स बनेगा जिसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जैसे इधर बनेगा वैसा वो साइड में भी बनेगा, मे बी लाइक दिस, राइट? यस तो ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और क्लियरली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है। यू एग्री विद दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो यही केस हम लोग अनलाइक चार्ज, ये लाइक हो, सॉरी ये अनलाइक हो गया, अभी लाइक के लिए भी कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. Sir. चलो वो भी करेंगे, विल डू इट फॉर लाइक आल्सो। इधर अवे जाएगा।
हाँ आवे जाएगा, एब्सोल्युटली आवे आवे। जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये Positive. पॉजिटिव है, तो ऐसा डिविएट होगा। पहले ऐसा ये वाला बनाएंगे, राइट? Yes, Yes. sir. ये वाला बनाएंगे हम लोग, वो बेटर रहेगा। Is it okay? Yes. Yes. Yes, sir. Obviously इधर भी लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा जो ऐसा जाता है। ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. इधर जो पोटेंशियल बच्चा हम लोग को जो ये तो मिलेगा ही, क्योंकि इधर ऐसा कुछ सर्कल तो बनेगा ही, राइट? चलो बराबर ना बच्चा? सर। वैसे इधर भी बनेगा, Yes, sir. राइट? सर वाला मेरे को नहीं समझा सर। क्या बोल रहे हो? सर ये नहीं समझा सर कौन सा बच्चा ये जो पोटेंशियल अभी ये 1 वोल्ट, ये 2 कूलम है, तो इधर 5 वोल्ट, इधर 4 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट, ऐसा कुछ बनेगा ना बच्चा? चार्ज है, चार्ज क्यू, तो इधर 1 वोल्ट, तो इधर 10 वोल्ट, थोड़ा दूर जाएगा तो 9 वोल्ट, देन थोड़ा दूर जाएगा तो 8 वोल्ट। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बराबर है? Yes. राइट? ये सर समझा। Sir. बच्चा डिक्रीज होते होते डोंट थिंक एक जगह आएगा जिधर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इसका भी 5 वोल्ट, इसका भी 5 वोल्ट, ये सर समझा। Yes, Yes. sir. Yes, होगा कि sir. नहीं होगा? होगा ना। होगा। जैसे इसका 0 वोल्ट हुआ था, इसका भी कुछ तो पोटेंशियल सेम होगा, इसका और इसका एक पॉइंट में सेम होगा, तो वो कॉमन होके ऐसा आएगा, लाइक दिस, राइट? ऐसा कुछ। Yes. Yes, sir. तो ऑब्वियसली ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस केस। आई होप यू गेटिंग। तो Yes. हाँ कॉमन वाला नहीं समझा वो पूरा। अच्छा, कॉमन मतलब समझ रहे हो? ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, राइट? ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये मान लो 2 है, तो इधर से इधर 2 है, इसका भी 2 है, तो ज्वाइन होगा ना वो, यस सर समझा। राइट? यस सर समझा। बच्चा इज इट क्लियर? एवरीबडी फॉलोड? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा और एक एग्जांपल ले लेते हैं चाहिए तो। कैपेसिटर मान लो, कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होता है, इसके अक्रॉस मैंने एक सेल कनेक्ट किया, सेल, राइट? प्लस माइनस, तो इधर भी प्लस, इधर भी माइनस, राइट? तो ये क्या होगा बच्चा? कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, तो इधर सब पॉजिटिव आएगा चार्जेस, इधर सब नेगेटिव आ जाएगा। आई होप यू गेटिंग। सो जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज एक्चुअली इधर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? Electric field. Big field. अभी इसका पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट है, तो इसका माइनस 5 वोल्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, राइट? Yes. 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 तो डोंट यू थिंक बीच में 4 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, सो यू कैन हैव मेनी लाइंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली चेंज होना चाहिए, तो ब्लैक होना चाहिए। ओके फाइन, सो यू कैन हैव मेनी लाइंस with the same potential, that is going to be equipotential surface. Is it okay? Yes. Yes, sir. So ये सब एग्जाम्पल है बच्चा। एंड सपोज ऐसा किया, सपोज इधर मैंने प्लेट रखा, बट ये जो प्लेट को निकाल के मैंने एक स्पेरिकल कंडक्टर रखा, राइट? एंड इसको सेल से कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर ना? तो क्या होगा बच्चा? इधर वो ऐसा सर्कल जैसा होगा और आगे जाते जाते स्ट्रेट होने लगेगा। आई होप यू गेटिंग, Yes, sir. राइट? Sir, Is it एक बार okay, वापस बच्चा? समझाओ ना। बच्चा ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। Yes, sir. तो डोंट यू थिंक ये आपका स्पीयर है, तो इसके लिए आपको ऐसा सर एक्चुअली फुल आना चाहिए, बट ये दोनों का बीच में ऐसा बनेगा, कर्व जैसा बनेगा, राइट? यस Yes. Yes. बट अभी प्लेट की वजह से कैसा बनता है बच्चा? स्ट्रेट बनता है ना? Straight बनता है। Yes. Yes. इधर आपको कर्व दिखेगा, इधर स्ट्रेट दिखेगा, राइट? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बच्चा इज इट वेरी क्लियर? एनी कंफ्यूजन? सर थर्ड और फोर्थ पॉइंट रिपीट करो ना नेट पे किसी को।
कौन सा बच्चा, ये वाला, थर्ड और फोर्थ नोट। ये नो सर, थर्ड नोट और फोर्थ। बच्चा थर्ड नोट में ये लिखा है इक्विपोटेंशियल कभी भी सरफेस इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। इंटरसेक्ट हुआ तो क्या होगा, जिधर इंटरसेक्ट होता है उधर इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल तुमको क्या लेना है पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक पोटेंशियल का 2 वोल्ट है, दूसरा पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का 3 वोल्ट है। देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट में यू विल बी इन कंफ्यूजन व्हाट टू टेक, राइट। यस सर। तो इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, राइट। अभी ये जो नोट नंबर 4 है बच्चा, इसमें मैंने क्या किया है, ये जो ब्लू लाइन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और ये जो ब्लैक लाइंस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। सर डॉटेड ब्लैक लाइन, नो तो सर्कुलर ब्लैक डॉटेड ब्लैक लाइन बच्चे ये जीरो पोटेंशियल पॉइंट है। आपको याद है ना, पोटेंशियल इधर Yes. जीरो आता है इक्वेटर में। यस, इक्वेटर पे। इक्वेटर में सब जीरो है, तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। यस एक्चुअली मेरे को ऐसा दिखाना चाहिए, ये डॉटेड प्लस ये वाला और ये वाला, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आई होप यू यस गेटिंग। सर Yes, वो डाइपोल के इसमें कॉमन नहीं आएगा दोनों का कभी? इधर इस पे ना, हाँ इधर कॉमन यही है ना, जीरो आता है कॉमन, इसके इफेक्ट से नलिफाई होता है। हाँ, यस सर, समझा। बच्चा ये पॉजिटिव, ये 2 कुलम है, ये -2 कुलम है, तो मिडिल पे आएगा। ये 4 कुलम है, ये अलग है, तो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होएगा। यस यस और जरूरी Yes, नहीं sir. कि वो जीरो होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है अभी। सर अगर दोनों का अलग अलग रहेगा, एक का +1 रहेगा, एक का -2 रहेगा, हाँ तो तो अलग वो हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल शिफ्ट होगा ना? शिफ्ट होगा, मतलब बहुत सारा आएगा, मतलब 2 वोल्ट यस वाला, यस 3 वोल्ट वाला, ऐसा बहुत सारा लाइन आ जाए, राइट। यस सर। सर समझा। Yes, sir. सो ये हम लोग ने अनलाइक चार्जेस के लिए लिया, ये लाइक चार्जेस के लिए लिया, ये 2 प्लेट्स सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस सर लिया। लाइक चार्जेस वाला एक बार एक्सप्लेन करो ना। बच्चा लाइक चार्जेस में क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स तो रिपल ही होता है ना, दूर जाता है, राइट। यस सो अभी इसका 5 वोल्ट आया, 4 वोल्ट आया, 3 वोल्ट आया, इसका भी 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट। अब ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना बच्चा, वो क्या लाइन है बच्चा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल ये लाइन में सेम है, तो इसके लिए बड़ा लाइन, नहीं राइट। समझ सर, वो कैसा है? बच्चा कैसा है, मतलब पोटेंशियल इधर डिक्रीज होते जाता है ना, चार्ज से दूर जाते डिक्रीज Yes. होता है, वो Yes, मानता है तुम। अब ये 5 Yes. वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। अब ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं मान रहा हूं कि 2 वोल्ट पे दोनों का कॉमन आता है। यस सर, समझा समझा। अभी बच्चे ये 5 वोल्ट इधर आ रहा है, तो जबरदस्ती इन दोनों को मिला नहीं सकता हूं ना मैं Yes, उसको sir. मिला सकता जो इंटरसेक्ट हो सकता है, राइट। समझा समझा। अब ये 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट वाला ऐसा ही बनेगा बच्चे, देखो ऐसा ही बनेगा 1 वोल्ट वाला। यस देन 0 वोल्ट वाला ऐसा ही बनेगा, आई होप यू गेटिंग, मतलब Yes, ऐसा ही sir. बनेगा बट दूर जाएगा, यस सर, समझा। Yes, राइट। sir. बच्चा पहला ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, बाद में ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बड़ा वाला, राइट। यस Yes, यस sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको।
बच्चा डन? No. No, sir. sir. Done, sir. बच्चा finished? Yes, sir. Yes, sir. Fine. रब करूँ ना? Yes, sir. Fine. So I hope equipotential surface, it's very clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So we'll move towards the next topic, that is electric potential energy. Electric potential energy. Electric potential energy. So obviously last time हम लोग ने जब डिस्कस किया था एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बोला था, अभी उसको डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये तो पता ही है आपको, मैंने लास्ट टाइम बताया था, सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उसको बनाना है, तो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन व्हाटएवर, and that work will be stored in the system in the form of potential energy, right? Yes. Yes, sir. So we will define it, that is electrostatic potential energy of a system of charges, of a system of charges is defined as the amount of work done to bring, right, to bring, yeah, to assemble the system of charges, right? I would say to bring the system of charges from infinity to their present locations. Is it okay? Amount of work done to bring system of charges from infinity to their present locations. Is it okay, बच्चा? Yes, sir. बच्चा डेफिनेशन समझ में आया? Yes. मतलब Yes. सिस्टम ऑफ चार्जेस को इंफिनिटी से लेके उनका जो लोकेशन है उधर तक लेके आने के लिए जितना भी काम लगता है, जितना भी वर्क डन आप करेंगे, दैट विल बी स्टोर्ड
and that will be stored in the form of potential energy. Electric potential Yes. charge. क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो अल्टीमेटली जो भी काम करेंगे वो स्टोर होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes. Yes. फाइन. अभी Yeah. बच्चा बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज? ऑब्वियसली जीरो, राइट? बच्चा सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? जीरो रहेगा ना, क्योंकि उसको Yes, इंफिनिटी नहीं रहेगा, आप Yes. जस्ट रख देंगे. मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, एक Yes, चार्ज sir. के लिए Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी जीरो रहता है, Zero. राइट? एटलीस्ट कितना चार्ज होना चाहिए बच्चा? 2 होना चाहिए, राइट? 2. Yes. So we'll move towards the first derivation, that is potential energy for a system of 2 charges. System of 2 charges. Fine. अच्छा, मान लो सिस्टम में 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1 ले लो और एक चार्ज Q2 ले लो, राइट? So consider 2 point charges. Q1 and Q2 placed at points A and B with the position vectors R1 bar and R2 bar with respect to origin O of a coordinate system. Is it okay? समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके, तो इसके हिसाब से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स विजुअलाइज करो. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑफ कोर्स ये जेड एक्सिस है, राइट? इसका ओरिजिन ये है. बच्चा क्लियर है? Yes, sir. तो Yes. दो पॉइंट ले लो बच्चा, ए एंड बी. अभी ए का पोजीशन वेक्टर R1 बार है, बी का पोजीशन वेक्टर R2 बार है, बराबर है? Yes. Yes. sir. तो ए पे आपने Q1 रखा है, बी पे आपने Q2 रखा है, इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है R12 लेंगे, राइट? Yes. Yes. Yes, sir. सो कोई बता सकता है इधर R12 क्या होगा? वेयर R12, डोंट यू थिंक इट इज मॉड ऑफ R1 बार माइनस R2 बार Minus होगा, R2 bar. Yes. Yes. राइट? Yes, sir. Yes. अच्छा क्लियर है? इधर तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो अभी आप सबको क्लियर है, राइट? इधर तक आप एक सिस्टम है, आपको सामने दिख रहा है, राइट? Yes. Yes. बच्चा Yes. Yes. अभी आप क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंट ए एंड बी नोट डाउन करेंगे, ठीक है? you'll नोट डाउन दैट पॉइंट. उसके बाद आप Q1 और Q2 को सिस्टम से निकाल देंगे. क्या करेंगे बच्चा? निकाल देंगे सिस्टम से. राइट. निकाल देंगे समझे. So we will remove, you will take this Q1 and Q2 to infinity, right? So to find potential energy of the system, both charges are taken to infinity. Taken to इन्फिनिटी infinity. क्यों लेके जाते हैं? हाँ बताओ ना सर. इन्फिनिटी क्यों लेके जाते हैं चार्जेस? हाँ, अभी सुनो बच्चा. चलो हम लोग इंफिनिटी लेके गए, आगे देखो, सुनो. अभी बच्चा दोनों सिस्टम में नहीं है, राइट? अभी दोनों को इंफिनिटी लेके गए, तो मेरे को अभी बताओ सिस्टम में कितना चार्ज है? Zero. Zero. 0. कोई नहीं है, राइट? तो सिस्टम में Yes. कोई नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा किसी का, राइट? Yes. Yes. तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे? इंफिनिटी से Q1 को A पे लेके आएंगे. क्या बोला मैंने? इंफिनिटी से Q1 को A. A पे लेके आएंगे. हाँ, सो कुछ तो काम करना पड़ेगा. द वर्क डन Yes. to move Q1 from infinity, क्योंकि इंफिनिटी पे रखा है आपने, to point A
A is given by, तो बच्चा बताओ क्या रहेगा वर्क डन। मैं W1 ले रहा हूं तो बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। बच्चा सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो Q1 को इंफिनिटी से A पे रखेंगे, वर्क डन क्या लगेगा बच्चा? जीरो। जीरो। बच्चा अभी तो समझा है मैंने, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है, राइट। सो बच्चे इसका एक ही रीजन है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यस सर। बच्चे जब इंफिनिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे? इंफिनिटी से ए पे लेके आने के लिए क्या करेंगे? इधर ही रख देंगे चार्ज को, क्योंकि इंफिनिटी है ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इंफिनिटी है, बराबर है। यस Yes, sir. अच्छा, if there is no charge in the system, will there be electric field? No. If there is No. no electric field, where will be the infinity, bacha? There is no infinity also. So you'll just keep the charge. What is the work done? Zero, right? जीरो। यस 0. बच्चे इधर तक समझा? यस सर। अभी Yes, बोलो sir. सिस्टम में कितना Yes. चार्ज है? कितना चार्ज है? जीरो। वन चार्ज है, वन ए चार्ज। बच्चा, जीरो नहीं, एक चार्ज है ना। सिंगल Q1 चार्ज है। क्या है ना तुम? Single charge. यस सर। यस सर। अभी बच्चा Q1 सिस्टम में आया तो वो खुद का हाँ, इलेक्ट्रिक yes. फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यस अभी Yes. इंफिनिटी रहेगा। डिड यू गेट दैट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। तो अभी Q2 को B से लेके आने के लिए, B तक लेके आना, तो आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। इज इट ओके? यस Yes. सर। यस वो अभी सर। आगे करेंगे बच्चे, ये कंप्लीट करो। अभी कोई पूछा सर इंफिनिटी क्यों लेके जा रहा है? डिड यू गेट द आंसर बच्चा? यस सर, समझ। यस सर। ओके ओके।
Done, sir. Okay, but everybody finished? No. No, sir. No, sir. Okay, finish it. So finished? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So we'll bring Q2 from infinity to point B, B. right? So obviously you have to do some work. Fine then. So next is work done to bring Q2 from infinity to point B, right? Yes. Yes. Against the electric field of Q1. Electric field of Q1 is given by. Is it okay बच्चा? समझ में आया ये जो लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, देखो W2 लिख रहा हूं क्योंकि Q2 को लेके आ रहा है. ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से सुनो इधर बच्चा. पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, बराबर है? Yes. So work done is potential into charge. Yes. So Yes. work done into potential into charge. इधर चार्ज किसको लेना है? जिसको हम लोग लेके जा रहे हैं उसका चार्ज लेना है. और पोटेंशियल Q2. किसका लेना है? जिधर हम लोग लेके जा रहे हैं उसका पोटेंशियल लेना है, राइट? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसका मतलब ऑब्वियसली दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 होगा. पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1, क्योंकि सिस्टम में Q1 है, इनटू चार्ज जो Yes. मूव हो रहा है दैट इज चार्ज Q2 है, बराबर है? Q2. Yes. 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 बच्चा जिधर हम लोग लेके जा रहे हैं बी पे लेके जा रहे हैं, उधर पोटेंशियल Q2 का तो नहीं हो सकता है क्योंकि Q1 का हो सकता है Yes. क्योंकि वो सिस्टम में है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड बच्चा. अभी पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू, अब डायग्राम देखो, इधर B है, इधर A है, इधर Q1 है, एंड इधर से द डिस्टेंस R12 है, तो R12. पोटेंशियल इधर क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 upon R12. बराबर है बच्चा R12, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग ने R12 लिया है, राइट? Yes. 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 ये हमारा पोटेंशियल हो गया इनटू Q2. Q2. बच्चा सबको समझ में आया? इज देयर एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो ऑब्वियसली इसको हम लोग W2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 लिख सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो अभी Q2 भी आ गया.
तो इतना वर्क डन किया तो Q2 भी आ गया, राइट? Yes. यस सर, Yes, sir. सो अभी आपको पता है टोटल वर्क डन, सपोज मैंने W लिया, सो देयरफॉर टोटल वर्क डन is given by, don't you think it is W is equal to W1 plus W1 plus W2? W2 ये तो Yes. जीरो है, तो 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q1 Q2 Q2 upon R12, बराबर है बच्चा? R12. Yes. 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 तो अभी बताओ मेरे को, सिस्टम में पहला कितना चार्ज था? पहला स्टार्टिंग में 2 था, One. राइट? 2. अभी कितना Yes. है? 2 2. 2. मतलब जो था वो सब कुछ आ चुका है, राइट? यस Yes. अभी आपको पता है जितना भी आपने वर्क डन किया होगा वही पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर हुआ होगा, यस सर, Yes, sir. right? So this work done, work done this work done in bringing the two charges किधर से लेके आया बच्चा? infinity Infinity. From infinity To point B. to point A and B To- respectively. A and B भी लिख सकते हैं, या to their respective locations, right? Yes, Yes. To their respective locations is stored in the form of potential potential energy, energy. Potential energy. in the form of potential energy, right? Yes sir, Of configuration of two charges. Potential energy of configuration of two charges. This is basically arrangement, right? So U is equal to W. Therefore, U is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. Is it okay? Yes. yes. ये मेरा फॉर्मूला है। बच्चा कुछ कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, समझा। Yes, sir. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो।
बच्चा finished? Yes, sir. So everybody finished? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो easy है ना, ये difficult है क्या? सर नहीं हुआ सर, ये थोड़ा ये वाला पार्ट बाकी। ये वाला बाकी है ना? Okay. डन सर, डन। Okay. Fine. So बच्चा अभी हमारे पास 2 चार्ज था, तो उसका तो किया हम लोग। In case 3 charges, 3 charges, right? So potential energy of a system of 3 charges. तो obviously डायग्राम तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे, राइट? मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x y z है, राइट? ओरिजिन O है, तो इधर पॉइंट A रखो, इधर B रखो, इधर C, राइट? तो ये R1 बार बराबर ना बच्चा? R2 बार और ये R3 बार दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी डिस्टेंस बोलो बच्चे, ये R12, ये R23, R23. R23, ये R13, R13. Q2, Q3. Is it okay? Yes. yes, अभी बच्चा आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ। वर्क डन टू ब्रिंग तीनों चार्जेस से, you know, all charges are taken to infinity. All 3 charges are taken to infinity. Charges are taken to infinity. Okay. तो बच्चा अभी हम लोग पहला किसको लेके आएंगे? ऑब्वियसली Q1 को। Q1. One. वर्क डन कितना रहेगा बच्चा? 0। 0. नो इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes. Yes. अभी बच्चा देखो, Q2 को जब लेके आएंगे तो ऑब्वियसली डोंट यू थिंक यू हैव टू डू Work done होगा. Work done होगा. होगा. वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, Q1. राइट? 1. Yes. तो मैं वर्क डन टू ब्रिंग Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 को मैं लिख रहा हूँ 1 2। 1, 2. 1, Yes. 2. Yes. Yes. अच्छा, Yes. 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने लिखा था ना V into Q, तो V किसका है? Q1 का है। Q1 Q का. किसका है? Q2 का है। इसके Q2 लिए 1 का. 2। Yes, sir. Yes, तो sir. W12 का मतलब यही है बच्चा, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम infinity to point B against the electric field of Q1, right? Q1. Yes. 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 Obviously, without any explanation, I can write 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q1, Q2 Q2 upon upon R1. R12. R12, बच्चा इसका लिखने का रीजन ये है, बच्चे ये 1 2 है, Yes. ये क्या है Yes. बच्चा? Yes. 1, 2. 2, तो ये 1 2, ये भी 1 2, 1 2 1 2 1 2, नो कंफ्यूजन, Yes. Yes, sir. sir. राइट? देखो अभी इजी क्या होगा, देखो वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, डोंट यू थिंक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का भी काम करना पड़ेगा अगेंस्ट Q2 का भी करना Q2 पड़ेगा। भी करना Yes. पड़ेगा. Yes. आप क्या लिखेंगे? वर्क डन अगेंस्ट Q1 इज 1 3, वर्क डन अगेंस्ट Q2 इज 2 3, 2 3. राइट? Yes. अब इजी नहीं Yes. होगा क्या? 1 3 2 1 2 है तो 1 2 1 2, 1 3 है तो 1 3 1 1 3, 3 1 2 3 है 3. तो 2 3 2 3, राइट? Yes. तो आप लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 upon R13, Q1 Q3 upon R13 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 upon R23, right? Yes. 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 बचा कितना चार्जेस था? तीनों आ चुका है। Yes. So Yes. obviously work done will be equal to W1 plus W2 plus W3, W3, which can be written as 1/4 pi epsilon 0 common in bracket Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23, right? Yes, sir. Yes, sir. So U is equal to W, right? So you can definitely write it as बच्चा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ मतलब राइट ही है, बट मेरे को ऐसा लिखना था W is equal to
W1 W2 W3 बराबर है ना? yes, Yes. मैं इसको W12 प्लस W13 प्लस W23 लिख सकता हूँ, राइट? Yes. So U is equal to W है, which can be written as 1 upon 4 pi epsilon 0 in bracket this term, that is Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23. बच्चा is it okay? yes, sir. Yes, sir. Sir. बच्चा don't you think सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, Don't you think potential energy for a system of 4 charges? So without any explanation, should I write U is equal to W? The answer is no, bachcha. Work done to bring Q1 from infinity to A 0 है, बराबर है? Yes. Yes. Zero. Then Q1 को लेके Q2 को लेके आने के लिए W12, 1, 2. Q3 को लेके आने के लिए W13 plus 13. W23 plus है. W23, yes, अब भी बच्चा बोलो Q4 को लेके आने के लिए क्या होगा? W14 plus 14, W24 plus W13. W34, वेरी गुड बच्चा. डोंट यू थिंक इजी हो गया डीलिंग? Yes. yes, Yes, sir. sir. Yes. अभी खाली ऐसा करके हम लोग को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में जो जो टर्म है उसको लिखते जाना है. Q1 Q2 1, 2, अपॉन 1, 2. R12, Yes, Q1 sir. Q3 1, Q3 upon Q3 R13. upon R13, Q2 Q3 upon R23, then Q1 Q4 upon R14, Yes. then Q2 Q4 upon R24, last में Q3 Q4 upon R34. Did you get that बच्चा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी मान लो बच्चा, मान लो 4 चार्जेस नहीं है, n चार्जेस है. Potential energy for a system of Q1 n number of charges है, n number of charges. बोलो बच्चा. Sir, W12 plus Summation. W13 up to Wn minus 1 into n. Minus बच्चा 1. ये 4 का बदले में मैंने बोला 5 6 7 अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस. n समझता है ना? n Yes, मतलब yes. n में Yes. एनी वैल्यू, राइट? तो अभी ये इक्वेशन लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग. मतलब इट इज इक्वल टू w. बच्चा फर्स्ट के लिए f क्या है? 1 2 है, बराबर है? Yes, Yes. सेकंड के लिए w13 है, 1, 3, w23 है. डोंट थिंक ये चलते जाएगा, Dot n. Wn minus 1 n. 1 Right. n W1. अभी बच्चा मैंने n को पहले लेके आने से पहला तो ऑब्वियसली मैं n-1 को लेके आया होगा, Yes, sir. Yes, sir. बाद में n को लेके आएगा ना बच्चा. Yes, Yes. बच्चा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं n को लेके आ रहा हूं तो मेरा ये जो फॉर्मूला होगा Q1 Qn होगा And yes, Yes. प्लस Q2 Qn होगा Q2 Qn. Yes, Yes. प्लस Qn minus प्लस Qn minus हाँ 1 बच्चा Qn-1 into Qn होगा. That's it. Wn minus 1 into Yes. n. Yes, Is it okay? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So मैं ये लिख सकता हूं क्या? U is equal to W, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 बाहर, right? Yes. Yes, In bracket, this is Q1 Q2 upon R12 plus dot 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 plus Q n minus 1 Qn upon R n minus 1 n. into n. Yes, Yes. yes. Is sir. it okay बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. अभी ऑब्वियसली फाइनली ऐसा लिख सकता हूँ U is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. ऑब्वियसली इधर क्या हो रहा है बच्चा? Q1 Q2 हर एक टर्म चेंज होते जा रहा है, राइट? Yes, Yes. तो मैं ये लिख सकता हूँ बट समेशन तो हो ही रहा है, प्लस हो रहा है, बट मैं Q एक को मैं J लिखूंगा, राइट? yes. एंड दूसरे को मैं I can take I also, no problem. I. So I J upon R I J.
RIJ, yes. RIJ, Yes. yes. And इधर इतना लिखूंगा for all pairs. For all pairs. Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये मेरा इक्वेशन होगा, राइट? Yes. Sir, I not equal to J आएगा ना, but इधर किधर बच्चा? वो समेशन में I not equal to J. हाँ, मतलब जरूरी नहीं है, बट अंडरस्टूड है ना. फर्स्ट हम लोग दूसरे को करेंगे, देन इसको करेंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. वन फर्स्ट चार्ज का तो जीरो तो पता ही है, बाकी सब तो कॉम्बिनेशन आता है. Yes. बच्चा समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब Yes, मैं sir. Q1 को Yes, लेके sir. आऊंगा तो कोई नहीं है उधर, तो उसका तो आएगा नहीं, उसका कॉम्बिनेशन तो आएगा नहीं, राइट? Yes. बट एवरीबॉडी फॉलोड? एनी कंफ्यूजन? No, sir. लिख लो बच्चा, कंप्लीट करो. बच्चा स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, लिख सकते हो, या खुद लिख सकते हो इसको. आई थिंक इजी है ना? सर 2 मिनट. ओके ओके, लिखो लिखो. डन सर.
Done, sir. So if it is done, we'll stop now. We'll continue next time. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Fine, fine.